Good morning, students, and welcome to online lecture of Sharaddi More English School. So today I'm going to teach you History 11th chapter is Struggle for Equality. Okay. So yesterday I was started this chapter and we have completed little bit. So let's recall. Okay. So in this chapter, what we are going to learn, we are going to learn such movement that that the person of our country started. Okay. Mostly they started such type of peasant movement for the benefit of farmers. Okay. Uh, um, yes, so in 1936, with the initiative of Professor N.G. Ranga, okay, the Akhil Bharatiya Kisan Sabha was established. Okay, so in 1936, Professor R.G. Ranga, okay, established a Akhil Bharatiya Sabha. Okay, okay, and why they started or why they established this Akhil Bharatiya Kisan Sabha for declaration of peasants' right. Okay, so the session of the Congress was held in the rural part, means in rural part of our country. Uh, in Phase, especially in Phase 4, a session was held in Maharashtra. Okay, so thousands of people attended this session. Means for attending this session, so many people belong to other the state or other the district came to Phase 4 to attend this session. Okay, सब मतलब ये जो सेशन रखा गया था फेज 4 में इसको अटेंड करने के लिए बहुत सारे peasants और farmers आए थे. In 1938, the crops in eastern Khandesh were destroyed due to heavy rain. The condition of the farmers was miserable. Yes, so in 1938, the crops in eastern Khandesh, ईस्टर्न खानदेश का जो पार्ट था हमारी कंट्री का, तो वहाँ पे जो क्रॉप थी वो टोटली क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉयड हो गई थी बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल. ओके, सो द कंडीशन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस loss, the condition of farmer was miserable. In order to get the land revenue wave, Sane Guruji organized meeting and procession at many places. Yes. So, Sane Guruji, okay. In order to get the land revenue wave, मतलब land revenue को wave करवाने के लिए साने गुरुजी ने क्या किया, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी. ओके, सो एट सो मेनी प्लेसेस, मतलब बहुत सारी प्लेसेस में उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी. He took out marches on the collector office. The peasants participated in large number in the revolutionary period of 1942. Yes. So उन्होंने बहुत सारी क्या निकाली थी, मार्च, जो मार्च करते थे ना मार्चेस, वो निकाले थे उन्होंने कहाँ पर, कलेक्टर ऑफिस में. प्लस उनके साथ मतलब जो सानी गुरु जी थे उनके साथ जो बहुत सारे पीजेंट्स थे, बहुत सारे फार्मर्स थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट करके अपना कंट्रीब्यूशन दिया था. और ये कब हुआ था, एट द टाइम ऑफ रिवोल्यूशनरी पीरियड. ओके, ऑफ 1942. नाउ डू यू नो, Sane Guruji built up unity of the workers. He tried to create strong center of worker union of Dhule Amanne. Yes. So Sane Guruji built up unity of this. Sane Guruji ने क्या किए थे, मतलब क्या करे थे उन्होंने, उन्होंने एक तरीके की यूनिटी लाई थी किसके अंदर, वर्कर्स के अंदर. ओके, एंड ही ट्राई टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ वर्कर. वो क्या चाहते थे, मतलब क्या क्रिएट करना चाहते थे, वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर क्रिएट करना चाहते थे वर्कर्स यूनियन में, धुले और अमरनेर डिस्ट्रिक्ट में जो था वहाँ पर. ओके, एंड प्लस ही वॉज ऑल्सो अ प्रेसिडेंट. जो मिल वर्कर्स होते हैं ना, उनकी जो यूनियंस होती हैं, अमरनेर में जो यूनियन थी मिल वर्कर्स की, तो वहाँ पे वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे. ही वेंट ऑन फास्ट अंडर डेड टू ओपन द डोर ऑफ विठल टेम्पल एट पंढरपुर फॉर द दलित. यस. So he went on fast unto dead to open the door of Vitthal temple at Pandharpur for the Dalits. Yes, so इन्होंने क्या किया था, देखो विठल टेम्पल जो कि कहाँ पे, पंढरपुर, ये उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराई थी फॉर द दलित पीपल. ओके, नाउ वर्कर्स यूनियन. In the latter half of 19th century, textile mills, railway, companies and such industries were started in India. Yes, so in latter half of 19th century, means in mid of 19th century, so many textile mills, railway companies and such other industries were started. Okay, the workers group had not aroused on large scale, but in this period, efforts were made to solve the problem of the workers. Yes,
सो द वर्कर ग्रुप हैड नॉट अराउज्ड ऑन लार्ज स्केल, मतलब जो वर्कर्स होते थे ना, वर्कर्स का जो ग्रुप था, वर्कर्स का जो ग्रुप था, तो वो उन लोग ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ये जो न्यू न्यू इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज जो स्टार्ट हुई थी उसके अंदर। ओके, बट इन दिस पीरियड इफर्ट वी आर मेड टू सॉल्व, लेकिन ये पीरियड में क्या किस चीज़ों में वो इफर्ट डालते थे ज़्यादा, जो वर्कर्स की प्रॉब्लम थी, उनकी जो प्रॉब्लम थी, वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो उसको सॉल्व करने में ज़्यादा अपना इफर्ट डाल रहे थे। Shashipara Banerjee and Narayan Mehaji Lokhande organized the worker at local level. Yes. So these two persons who were Shashipara Banerjee and Narayan Meghaji Lokhande. Okay, they organized workers at local level. उन्होंने क्या किया? They both organized workers and on a local level. उन्होंने local level के ऊपर workers को organize किया था. Lokhande's contribution to the working class movement for was so valuable that he described as the father of Indian workers movement. Yes, अब जो लोखंडे से है ना, उनका जो कंट्रीब्यूशन था जो वर्किंग क्लास मूवमेंट में, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, इम्पोर्टेंट था, वैल्यूएबल था। इसी वजह से उन्हें क्या बोला जाता था, फादर ऑफ इंडियन मूवमेंट। ओके, फादर ऑफ इंडियन वर्कर्स मूवमेंट। नाउ डू यू नो the native place of Narayan Meghaji Lokhande and कानेसर नियर ससवाड़ इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। यस, अब देखो जो नारायण मेघाजी लोखंडे है ना, तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे, खानेसर, जो कहाँ पे था, नियर ससवत इन पुणे डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से ये बिलोंग करते थे, मतलब ये उनकी क्या थी, नेटिव प्लेस थी। ही फॉर्म द मिल वर्कर्स यूनियन नोन एज बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन इन 1890। यस, तो उन्होंने क्या बनाया था, मिल वर्कर्स की एक यूनियन बनाई थी। ओके, एक जैसे सारे जो मिल वर्कर्स होते हैं ना, उनका एक ग्रुप फॉर्म होता है, दैट कॉल्ड यूनियन। तो वैसे ही उन्होंने बॉम्बे में उन्होंने क्या बनाया था, मिल वर्कर यूनियन फॉर्म की थी, और उस यूनियन को उन्होंने नेम दिया था बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। ओके, इन 1890। दिस वर्कर यूनियन इज बिलीव टू बी द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज मूवमेंट इन इंडिया। अब ये जो वर्कर्स थे यूनियन के, राइट, तो इन लोगों का क्या बिलीव था कि मतलब ये क्या है, एक तरीके की बिगिनिंग है उनकी ऑर्गेनाइजेशन की इंडिया में। ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ मुंबई ब्रांच ऑफ सत्य शोधक समाज फाउंडेड बाय महात्मा फुले। यस, देखो मतलब उन्होंने तो ये ओपन किया था, मतलब उन्होंने मिल वर्कर्स यूनियन जो थी, है ना, उन्होंने जो यूनियन बनाई थी ये तो की थी, प्लस उसके साथ वो क्या थे, सत्य शोधक समाज, है ना, मुंबई में जो सत्य शोधक समाज जो ब्रांच थी। ओके, तो वहाँ पे वो क्या थे, चेयरमैन थे, जो कि किसने बनाया था, ये सत्य शोधक समाज किसने स्टार्ट किया था, महात्मा फुले ने, है ना, तो उसके ये चेयरमैन थे। एंड ड्यू टू हिज इफर्ट फ्रॉम 10 जून 1980 1890 द वर्कर्स स्टार्टेड गेटिंग वीकली हॉलीडे ऑन संडे। यस, अब उनके इफर्ट्स के बाद ऑब्वियसली उन लोगों ने डिमांड किए थे, पहले कैसे थे, मतलब संडे सैटरडे जो हॉलीडे होती है तो वो नहीं होते थे, उन लोगों को मतलब वीक में फुल डेज वर्क करने पड़ता था, है ना। तो इन लोगों के इफर्ट्स के बाद, बहुत सारी इफर्ट्स के बाद 10 जून 1980 से 1890 से क्या हुआ था, वर्किंग स्टार्टेड गेटिंग वीकली हॉलीडे, मतलब जो वर्कर्स थे, है ना, तो उन लोगों को क्या मिलने लग गया था, वीकली हॉलीडे मिलने लग गया था संडे को। ओके, अदरवाइज हम लोगों को अभी संडे के दिन भी हॉलीडे नहीं होता। At the same time, an agitation was launched against the fringe condition of the tea plantation workers in Assam. Yes, so at the same time, ये टाइम पे और क्या हो रहा था, एक एगिटेशन लॉन्च हुई थी किसके अगेंस्ट में, जो ब्रिंच कंडीशन थी टी प्लांटेशन वाले वर्कर्स की वहाँ पर आसाम में, उन लोगों के लिए। सो एट द सेम टाइम पे क्या हुआ था, एक एगिटेशन लॉन्च होता है, एगिटेशन मतलब मूवमेंट बोल सकते हैं हम लोग जिसको, है ना, एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था किसके अगेंस्ट में, ब्रिज 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 मतलब बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी, कहाँ की, जो पीपल्स जो थे ना, जो वर्कर्स थे, जो क्या करते थे, टी प्लांटेशन करते थे आसाम में, तो उन लोगों की कंडीशन बहुत खराब थी। ओके, तो उन लोगों के लिए क्या किया गया था, एगिटेशन एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था आसाम में। In 1899, the Great Indian Peninsula GIS railway workers called for a strike for their demand. Yes. So in 1899 में क्या हुआ था, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर GIT रेलवे वर्कर्स जो थे, है ना, तो उन लोगों ने क्या की थी, स्ट्राइक की थी उनके डिमांड्स के लिए। So during the anti-partition movement, workers carried out strike from
Workers carried out strikes from time to time in support of स्वदेशी. अब देखो एंटी पार्टीशन के टाइम पे मतलब जब एंटी पार्टीशन वाला मूवमेंट चल रहा था तो वर्कर्स लोग क्या कर रहे थे, दे वेर ऑन स्ट्राइक. वो लोग कहाँ पे थे, इस स्ट्राइक पर बैठे हुए थे और टाइम टू टाइम वो किस चीज़ों को सपोर्ट करते थे, वो स्वदेशी जो इंडियन गुड्स होते थे ना उन लोगों को सपोर्ट करते थे. आफ्टर द फर्स्ट After the First World War, due to industrialization, there was rise of worker class in India. Yes. So when the First World War was totally finished, ना तो क्या हुआ था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था, जो वर्कर की क्लास थी वो इंडिया में क्या गई थी, राइज हो गई थी, बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी. एंड देन अ नेसेसिटी फॉर नेशन वाइड वर्कर यूनियन वॉज फेल्ड. और फिर इसके बाद क्या हुआ था, जो इन लोगों का जो यूनियन था, जो देन अ नेसेसिटी फॉर नेशन वाइड वर्कर, जो नेशन वाइड वर्कर की जो नेसेसिटी थी वो भी क्या हो गई थी, फेल्ड हो गई थी. बट विद दिस नेसेसिटी इन 1920 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC वॉज इस्टेब्लिश. यस. फिर ये फेल्ड होने के बाद क्या हुआ था, विद द नेसेसिटी इन 1920 फिर क्या हुआ, क्या इस्टेब्लिश किया गया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्टार्ट किया गया था, मतलब इस्टेब्लिश किया गया था. NM जोशी हैड अ मेजर रोल इन द वर्किंग ऑफ AITUC. यस. अब ये जो AITUC जो ऑर्गेनाइजेशन था जो इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसमें सबसे मेजर रोल किसका था, NM जोशी इनका मेजर रोल था. And Lala Lajpat Rai was the president of the first session of AITUC. अब जब जैसे कांग्रेस का सेशन होता है, जैसे कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके सेशन होते, मीटिंग्स होते, तो ये जो AITUC तो इसका जो फर्स्ट सेशन था है ना, तो उसके लाला लाजपत राय जो थे वो उसके क्या थे, फर्स्ट मतलब उसके प्रेसिडेंट थे. ओके. सो लाला लाजपत राय वो सेशन के क्या थे, प्रेसिडेंट थे. एंड ही टोल्ड द वर्कर टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट. और उन्होंने क्या बोला, जो वर्कर्स थे ना, तो वर्कर्स को उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि मतलब आप लोगों को क्या करना चाहिए, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट. आप लोगों को किस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, नेशनल मूवमेंट में. श्रीपत अमृत दंगे, मुजफ्फर अहमद, such socialist leader by spreading the socialist ideology among the workers. अब कुछ जो सोशल वर्कर्स थे, राइट, लाइक श्रीपत अमृत दंगे, मुजफ्फर अहमद, तो ये सब ये दोनों क्या थे, सोशलिस्ट लीडर्स थे. तो ये लोग क्या स्प्रेड कर रहे थे, ये लोग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी स्प्रेड कर रहे थे वर्कर्स के अंदर. ओके. Work to form militant organization. In 1928, the Mumbai Mill Worker Union went on strike for 6 months. Yes. अब देखो 1928 में क्या हुआ था, जो मुंबई में देखो जो मील वर्कर यूनियन फॉर्म हुआ था है ना, किसने फॉर्म किया था उसको, यस, नारायण इन्होंने फॉर्म किया था ना, नारायण मेघाजी लोखंडे. तो क्या हुआ था, मतलब 1928 में ये जो मिल वर्कर थे ये सब कहाँ पे बैठ गए थे, स्ट्राइक पर बैठ गए थे फॉर 6 मंथ. सोचो 6 मंथ के लिए वो स्ट्राइक पर बैठ गए थे. मेनी सच स्ट्राइक वी आर मेड बाय द रेलवे वर्कर्स, जूट मिल वर्कर्स एक्सेट्रा. अब बहुत सारी जो वर्कर्स लोगों की जो स्ट्राइक थी, तो कौन सी इससे फील्ड से बिलोंग करते थे, जैसे ज़्यादातर जो स्ट्राइक पर बैठे थे वर्कर्स वो थे रेलवे वर्कर्स थे, जूट मिल वर्कर्स थे और एक्सेट्रा. The government was disturbed to see the growing strength of the workers movement. Yes, अब ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों की वजह से वर्कर्स की जो हरकतें थी ना, राइट, तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट थी वो टोटली डिस्टर्ब हो गई थी. और मतलब ऑब्वियसली क्यों डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि एक तरीके से ये डिस्टर्ब करे अदर पीपल्स को भी है ना, मतलब वो जो भी करे ऑब्वियसली दे आर डूइंग दैट थिंग फॉर अ गुड पर्पस है ना, लेकिन फिर भी उससे गवर्नमेंट डिस्टर्ब हो रही है. तो ये क्या करें, मतलब ऑब्वियसली ये डे टू डे क्या हो रहा था, इनका जो मूवमेंट था वर्कर मूवमेंट और इनकी जो स्ट्रेंथ थी स्ट्राइक पर बैठने की वो बढ़ते जा रही थी, इंक्रीज होते जा रही थी. टू सब्रेस दिस मूवमेंट लेजिस्लेशन वेयर मेड. अब ये मूवमेंट को सब्रेस करने के लिए क्या रखा गया था, लेजिस्लेशन रखा गया था. ओके. द वर्कर स्ट्रगल प्रूव टू बी सपोर्टिव टू द नेशनल मूवमेंट. अब जो वर्कर स्ट्रगल था, जो वर्कर्स लोग जो स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो क्या प्रूफ हुआ था, वो बहुत ही सपोर्टिव प्रूफ हुआ था, किसके लिए, नेशनल मूवमेंट के लिए. ओके.
Now, socialist movement. Many of the young activists in the Indian National Congress felt that for protecting the interests of the people, it is necessary to overthrow the British government. Now, ऐसे बहुत सारे यंग एक्टिविस्ट थे है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जिन लोगों को क्या लग रहा था, मतलब प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इट इज नेसेसरी ओवरथ्रो द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब जो मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है किसके इंटरेस्ट को, जब पीपल्स थे, ये बहुत ही ज़्यादा क्या था, कंपल्सरी था, बहुत ज़्यादा ही नेसेसरी था फॉर ओवरथ्रो द ब्रिटिश गवर्नमेंट. So similarly, they started realizing that the society should be structured on the principle of economic and social equality. फिर बाद में क्या लोगों को क्या लगा, क्या रियलाइज हुआ उन लोगों को, मतलब जो सोसाइटी है वो वापस से रीस्ट्रक्चर होना चाहिए, और कौन से प्रिंसिपल पे रीस्ट्रक्चर होना चाहिए, और द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी के ऊपर, मतलब सोशल इक्वालिटी के ऊपर. ओके. Through this realization, there was rise and growth of socialist ideology. अब ये उनकी जो इनको जो रियलाइज हुआ था, इनकी जो रियलाइजेशन थी, उसके वजह से क्या हुआ था, एक मतलब देयर वाज राइज एंड ग्रोथ, मतलब जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी उसके अंदर मतलब वो बढ़ गई थी, उसके अंदर राइज भी हो गई थी और उसकी ग्रोथ भी हो गई, मतलब ऑब्वियसली वो उनकी जो थिंकिंग थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी सोशलिस्ट की, वो उसके अंदर ग्रोथ आ गया था. The socialist youth, while they were in prison at Nasik, decided to form the Socialist Party within the Indian National Congress. अब जो सोशलिस्ट लीडर थे, राइट, जो सोशलिस्ट यंग लीडर थे, तो उन लोगों ने क्या सोचा, मतलब वो लोग कहाँ पे थे, प्रिजन, मतलब कैदी थे, कहाँ पे, नासिक में. सो इन देयर दे डिसाइडेड टू फॉर्म सोशलिस्ट पार्टी. उन लोगों ने वहीं पे क्या डिसाइड किया कि उन लोगों को क्या फॉर्म करना है, सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म करनी है विद इन द इंडियन कांग्रेस. ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ. So according to this decision, in 1934 the Congress Socialist Party was formed, which included leader. Yes, फिर ऑब्वियसली मतलब इन लोगों ने सोचा था, जो सोशलिस्ट यंगस्टर्स थे, लीडर्स थे, उन लोगों ने सोचा था ना, ये डिसाइड किया था कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, सोशलिस्ट पार्टी बनाना चाहिए. तो इसके बाद क्या हुआ था, अकॉर्डिंग टू डिसीजन, मतलब ये डिसीजन से 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वो फॉर्म हुई थी, और उसमें लीडर्स कौन से थे, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसनी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, एक्सेट्रा, ये सारे मेंबर्स थे उसमें. इसमें जो उन लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, पार्टी स्टार्ट की थी, सोशलिस्ट पार्टी है ना, सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसके मेंबर्स थे ये सब. In Quiet India movement of 1942, these young socialists were in the forefront. अब देखो, जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था, जो हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी कर चुके प्रीवियस चैप्टर में, है ना, तो जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था, तो वो टाइम पे क्या था, मतलब जो यंग सोशलिस्ट लीडर थे, मतलब जिन्होंने ये पार्टी स्टार्ट की थी, सोशलिस्ट पार्टी ना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिन्होंने स्टार्ट किए थे, तो वो जो लीडर थे वो सबसे आगे थे, फोर फ्रंट थे क्वाइट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे. ओके. इंडियन गॉट इंट्रोड्यूस टू कार्ल मार्क्स एंड हिज कम्युनिज्म. यस, अब देखो जो इंडियन थे, तो उन लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, किससे, कार्ल मार्क्स ने इंट्रोड्यूस किया था, क्या, कम्युनिज्म. ओके. लोकमान्य तिलक हैज ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल ऑन मार्क्स ऑन 1881. ओके. सो वैसे ही देखो, लोकमान्य तिलक ने क्या किया था, ऑलरेडी जब इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था कार्ल मार्क्स का, तो वही टाइम पे लोकमान्य तिलक ने क्या राइट, एक आर्टिकल राइट किया था, किसके ऊपर, मार्क्स के ऊपर. ओके, कार्ल मार्क्स के ऊपर 1881 में. After First World War, the influence of communism was felt in India. Yes. तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश हुई, तो उसके बाद क्या हुआ था, जो कम्युनिज्म है ना, तो वो इन्फ्लूज हो गया था. ओके, कंट्री में. Manavedra Nath Roy played active role in the international communist movement. अब जो मनावेंद्र नाथ रॉय थे, है ना, तो ये बहुत ही, इन्होंने मतलब बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया था इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट में. In 1925, the Communist Party was formed in India. The work of building militant organization of worker and peasant was done by the young communists. Yes, अब इसके वजह से इसके बाद क्या हुआ था, 1925 में
कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म की गई थी इंडिया में, हमारी कंट्री में। और द वर्क ऑफ बिल्डिंग मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर, और जो वर्क था बिल्डिंग मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए, वो कौन, मतलब कौन देख रहा था? जो यंग कम्युनिस्ट थे वो देख रहे थे, मतलब उनके अंडर हो रहा था ये काम। द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड फीलिंग द डेंजर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट। यस, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन लोगों को क्या लग रहा था? डेंजर, मतलब उन लोगों को ऑब्वियसली दे वर स्कैर्ड, उन लोग डर रहे थे, उन लोगों को डेंजर लग रहा था ये कम्युनिस्ट मूवमेंट। श्रीपत अमृत दंगे, मुजफ्फर अहमद, केशव नीलकांत, जोगलेकर एक्सेट्रा वेयर अरेस्टेड। ऑब्वियसली जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को डेंजर, मतलब खतरा लग रहा था, है ना, तो वो टाइम फिर उन लोगों ने क्या किया, जो मेंबर्स थे ये पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के, श्रीपत अमृत दंगे, मुजफ्फर अहमद, केशव नीलकंठ जावेकर और एक्सेट्रा और अदर दूसरे मेंबर थे, उन सबको उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। They were charged with planning of a conspiracy to overthrow the British rule. Yes, अब उन लोगों के ऊपर क्या चार्ज लगा दिया गया था कि वो एक कॉन्स्पिरेंसी बना रहे थे, किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश के अगेंस्ट में। ओके, they were given different punishment. The trial took place in Meerut and in therefore known as the Meerut conspiracy case. Yes, अब इनका जो चार्जेस है, लोगों के ऑब्वियसली लोगों को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा था, लोगों को मार रहे थे उनको, मतलब ट्रायल में लिया गया था ना, तो वो कहाँ पे लिया गया था उनको ट्रायल में? मैरूड में। तो इसके लिए ये जो पूरा सीन था, तो उसको क्या बोला जाता था? मैरूड कॉन्स्पिरेंसी केस बोला जाता था। ओके, एंड आफ्टर, इवन आफ्टर द मैरूड ट्रायल द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिस्ट वर्कर मूवमेंट रिमेन कांस्टेंट। यस, मतलब देखो आफ्टर मैरूड ट्रायल, मतलब मैरूड ट्रायल होने के बाद, मतलब जो वर्कर्स है उन लोगों का ट्रायल हो गया था पुलिस के पास से, तो उसके बाद भी जो इन्फ्लुएंस थी कम्युनिस्ट वर्कर की, वो क्या थी? कांस्टेंट थी, मतलब वैसी थी, मतलब उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता। मतलब उन लोगों ने अब ये नहीं सोचा था कि हम लोग हमारे स्टेप पीछे ले लेंगे, हम लोगों के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पुलिस ने ऐसा ऐसा किए हैं, हम लोगों के ऊपर छोटे छोटे चार्जेस लगाए हैं। नहीं, उन लोगों ने अपना जो स्टेप है उसको एज इट इज ही रखा था, उसको बैकवर्ड नहीं किया था, उसको पीछे नहीं किया था। नाउ फेमिनिस्ट मूवमेंट in the Indian social system movement where women were given secondary position. Yes, all we know that इन अवर सोशल सिस्टम, हमारे इंडिया का जो सोशल सिस्टम है, तो वहाँ पे जो वुमेन्स है उन लोगों को सेकंड पोजीशन दी जाती है ना, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन किसकी होती है? जेंट्स की होती है, मेन की होती है, राइट। सो ड्यू टू मैनी एवल प्रैक्टिसेस दे वेयर सब्जेक्टेड टू इनजस्टिस, और इसी की वजह से बहुत सारी जो इवल प्रैक्टिसेस होती है, मतलब जो बुरी बुरी चीज़ें होती है ना, वो की जाती थी। जैसे उन लोगों के साथ इनजस्टिस होता था वुमेन्स के साथ। बट ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड देयर वॉज एन अवेकनिंग अगेंस्ट इट। लेकिन देखो जैसे जैसे टाइम स्पेंड होते गया, जैसे जैसे जो वो टाइम फिनिश हुआ, जो मतलब दूसरे टाइम में जैसे हम लोग इंटर हुए है ना, तो वो क्या, जैसे अभी हम लोग मॉडर्न पीरियड में इंटर हुए, तो फिर क्या हो गया था? जैसे मॉडर्न पीरियड के टाइम पे क्या हुआ था, ये जो सारे जो चीज़ें थी, मतलब जो वुमेन्स के साथ जो इविल प्रैक्टिसेस की जाती थी, जो उनके साथ इनजस्टिस किया जाता था, तो वो सब क्या होता था? स्लोली स्लोली बंद होते जाता था, मतलब वो सारी चीज़ों से बहुत सारी अवेकनिंग हुई, मतलब अवेक हुए थे लोग। ओके, उसके अगेंस्ट में, मतलब लोगों ने उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया था। अब ऐसे देखो, अभी रिलीजन के नाम पे भी ऐसे वुमेन्स के साथ बहुत गलत तरीके से बहुत सारी चीज़ें की जाती है हमारी सोसाइटी में। जैसे ऑलमोस्ट राजस्थान साइड होता है, फिर यूपी साइड होता है, ऐसे बहुत सारे स्टेट है स्टिल हमारी कंट्री में, जहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल भी अगर राजस्थान में लो, तो ऐसे है अभी भी ऐसे विलेज जहाँ पे बाल विवाह हो जाता है ना, लड़कियों का चाइल्ड मैरिज हो जाती है। फिर जैसे अभी वीडियो सिस्टम ऑलमोस्ट अभी है नहीं, लेकिन पहले वीडियो सिस्टम नहीं होता था। मतलब वीडियो अगर हो रही है कोई लड़की या कोई वुमेन, तो उसकी उसके हस्बैंड की फ्रेंडल में क्या कह दिया जाता था? जला दिया जाता था, उसको सती सिस्टम बोलते थे, है ना। तो ये सब किया जाता था, लेकिन स्लोली स्लोली क्या हुआ, इसकी इन सब चीज़ों के ऊपर ऑब्वियसली इसको बैन करने, मतलब इसको इसको प्रॉबिट करना जो फर्स्टली स्टार्ट किया था वो ब्रिटिश ही थे। मतलब ऑब्वियसली उन्होंने अच्छे काम भी किए हमारी कंट्री में, लेकिन बुरे काम भी किए, तो उन लोगों ने स्टार्ट किया था। फिर जैसे दूसरे जो सोशल वर्कर्स थे, उन लोगों ने भी मतलब ये चीज़ों को बहुत सपोर्ट किया था। फिर उन लोगों ने वैसे बहुत सारे काम किए थे जिससे ये सारी चीज़ें रुकी है हमारी कंट्री में। So some of the male reformers took initiative in the reform movement related to women. Yes, अब ऐसे बहुत सारे क्या थे, मेल रिफॉर्मर्स थे वो टाइम पे, जिन्होंने क्या किया था, बहुत ही इनिशिएटिव रिफॉर्म मूवमेंट जो थे वो मूवमेंट थे वो रिलेट किया था वुमेन्स के लिए। फर्स्टली इन द कोर्स ऑफ टाइम वुमेन लीडर स्टार्टेड कमिंग फॉरवर्ड, और फिर उसके बाद मतलब ये फर्स्ट टाइम था जब
जो वुमेन लीडर्स थे वो आगे आना स्टार्ट हुए थे। मतलब पहले जो वुमेन्स थी उनको परमिशन ही नहीं थी, वो भले कितना भी सोशल वर्क कर ले लेकिन उसको मतलब सोसाइटी में उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती थी। लेकिन इसके बाद से क्या हुआ था, वुमेन्स लीडर स्टार्ट हो गए थे, मतलब वुमेन्स लीडर्स बनना स्टार्ट हो गए थे एंड स्टार्टेड कमिंग फॉरवर्ड, और वो आगे आने लग गए थे। देयर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन केम टू बी एस्टैब्लिश। अब वुमेन्स के लिए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट बनाए गए थे, ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, स्टैब्लिश किए गए थे। Pandita Ramabai established the Arya Mahila Samaj and Sharda Sadan. Similarly, Seva Sadan founded by Ramabai Nade, example of this. Yes. जैसे मैंने बोला ना आप लोग को, उन लोगों के लिए जो वुमेन है उन लोगों के लिए इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किए गए थे। तो वैसे पंडिता रमाबाई थे, उन्होंने क्या किया था, आर्य महिला समाज और शारदा सदन ये और इस्टेब्लिश किया था। प्लस जो रमाबाई थे उन्होंने सेवा सदन फाउंड स्टार्ट किया था। ओके। भारत महिला परिषद 1904 and All India Worker Conference 1927 were founded as well. Yes. तो भारत महिला परिषद ये भी इस्टेब्लिश किया गया था 1904 में, और ऑल इंडिया वर्कर वुमेन कॉन्फ्रेंस ये भी स्टार्ट किया गया था। institution Therefore this institutional work reached at the national level. Yes. इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंस्टीट्यूशनल वर्क था वो कहाँ पे पहुंच गया था, एक नेशनल लेवल। ऑब्वियसली अगर हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग में हम लोगों को उसको इतना सक्सेस और इतना मतलब इतना सक्सेस दिखाई नहीं देता है। बट अगर हम कंटिन्यू वर्क करते रहे तो ऑब्वियसली आफ्टर सम टाइम वी विल गेट द सक्सेस ऑफ दैट वर्क, है ना। हम लोग को वो चीज़ों का, वो काम का क्या दिखेगा, सक्सेस दिखेगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो इंस्टीट्यूशनल वर्क स्टार्ट किए गए थे तो वो एक नेशनल लेवल पर चले गए थे। फॉर द इश्यूज सच एज द राइट टू इनहेरिटेंस, राइट टू वोट एक्सेट्रा, वुमेन हैड टू स्ट्रगल थ्रू द मीडियम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो जो वुमेन थी जो प्रॉब्लम फेस कर रही थी किस चीज़ को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर, फिर वोटिंग की जो चीज़ होती है उसको लेकर, तो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन थे ये क्या करते थे, इनकी हेल्प करते थे। ये एक मीडियम बन गए थे, एक क्या बोलते हैं उसको, एक वे बन गया था, एक जरिया बन गया था उन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वुमेन्स की। रमाबाई जनार्दन सेव सावे, रखमाबाई जनार्दन सावे वॉज द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग वुमेन डॉक्टर इन इंडिया। यस, देखो अब पहले एजुकेशन की भी परमिशन नहीं थी लेडीज को, गर्ल्स को, है ना। लेकिन जो रखमाबाई जनार्दन है ना, ये फर्स्ट लेडी थी जो क्या किसकी प्रैक्टिस कर रही थी, डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रही थी। She delivered series of lecture related to health issue of women. Yes, उन्होंने बहुत सारे जो lectures वो क्या किए थे, डिलीवर्ड किए थे, कौन से इशू के ऊपर, वुमेन हेल्थ इशू के ऊपर। She also opened a branch of Red Cross Society at Rajkot, and she had also opened a branch of Red Cross Society. उन्होंने एक ब्रांच भी स्टार्ट की थी, क्या नेम था उसका, रेड क्रॉस सोसाइटी राजकोट में। During the 20th century, participation of women in public life began to increase. Yes, अब 20th century में क्या हुआ था, जो पार्टिसिपेशन था वुमेन्स का वो भी क्या पब्लिक लाइफ में, वो भी क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था, बढ़ गया था। वुमेन पार्टिसिपेशन इन द नेशनल मूवमेंट एंड रिवोल्यूशनरी वर्क वाज सिग्निफिकेंट। यस, अब वुमेन का जो पार्टिसिपेशन था वो नेशनल मूवमेंट में भी था, प्लस रिवोल्यूशनरी वर्क में भी उनका एक सिग्निफिकेंट था। आफ्टर द एक्ट ऑफ 1935 वुमेन वेयर इंक्लूडेड इन प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज एज वेल। यस, फिर देखो क्या हुआ था 1935 में जो वुमेन्स थी, है ना, तो उन लोग कौन सी पोजीशन पे आ गए थे, उन लोगों का मतलब जो प्रोविंशियल मिनिस्ट्री इसकी जो पोजीशन दी जाती तो उसके ऊपर भी वो आने लग गए थे। आफ्टर द इंडिपेंडेंस द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन हैज बीन क्लियरली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली। यस, तो इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसमें उसका एक जो प्रिंसिपल था तो उसमें क्लियरली प्रिंसिपल की इक्वालिटी उसमें क्लियरली बता दिया गया था, मतलब उसमें क्या क्लियरली स्टेट किया गया था, जो प्रिंसिपल्स थे उसमें दिए गए थे किसकी इक्वालिटी को लेकर, मैन और वुमेन की इक्वालिटी को लेकर। जैसे मैन और वुमेन को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ना, मतलब बहुत ही उन वुमेन्स को बहुत मतलब बहुत क्या बोलेंगे, मतलब एज कम्पेयर टू मैन वुमेन को बहुत ही छोटा समझा जाता है। इन
ईच एंड एवरी वे, हर एक तरीके से वुमेन को बहुत छोटा देखा जाता था, समझा जाता था। लेकिन जब हमको इंडिपेंडेंस मिला तो वो टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था हमारी कंट्री का, तो उसमें क्लियरली क्या क्या स्टेट किया गया था, प्रिंसिपल दिए गए थे उसमें इक्वालिटी को लेकर मैन और वुमेन की। ओके, नाउ दलित मूवमेंट। द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर वाज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी। अब जो हमारी जो सोशल स्ट्रक्चर है, हमारी कंट्री का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर बेस्ड है, इनइक्वालिटी के ऊपर। ओके, social reformer like Mahatma Jyotirao Phule, Narayan Guru brought about a weakening of the people against the unjust treatment given to Dalits in the society. Yes, अब ये से जो सोशल रिफॉर्मर्स थे लाइक महात्मा ज्योतिराव फुले, नारायण गुरु, तो ये लोग ने क्या किया था, दे ब्रॉट अबाउट द अवेकनिंग। वो लोगों के अंदर क्या लाना चाहते थे, लोगों को मतलब जगाना चाहते थे कि चीज़ों के अगेंस्ट में जो उन लोगों का जो बुरा बिहेव था दलित के साथ सोसाइटी में, वो उनको दिखाना चाहते थे, उनको समझाना चाहते थे ये सारी चीज़ें। So following the teaching of Mahatma Phule, Gopal Baba Walankar and Shivram Janba Kamble worked for the eradication of our untouchability. Yes, अब महात्मा फुले की टीचिंग के थ्रू जो गोपाल बाबा थे और जो शिवराम थे, इन्होंने किस चीज़ में वर्क किया, जो अनटचेबिलिटी थी हमारी कंट्री में, इस पर उन्होंने वर्क किया। In 1888, Gopal Baba Walankar, in his book Vitthal Vidmasan, condemned untouchability. Yes, अब 1888 में है ना, जो गोपाल बाबा वालंकर थे उनकी एक बुक लिखी गई थी, आई थी, लॉन्च हुई थी, और उसका नेम था विध्वासन। ओके, तो उसमें क्या दिया हुआ था, उसमें अनटचेबिलिटी के बारे में कंडेम किया गया है। शिवराम चंद्रा काम्बले started the magazine सोमावंशीया मित्रा ऑन 1 जुलाई 1908। यस, अब जैसे देखो गोपाल बाबा ने क्या किए थे, एक बुक राइट किए थे ना अनटचेबिलिटी के ऊपर से, तो वैसे ही जो उनके फ्रेंड्स, उनके साथ में जो उनके कॉलीग थे, उन्होंने क्या किया था, शिवराम जन्भा काम्बले, इन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट की थी सोमावंशीया मित्रा 1 जुलाई 1908 में। He raised voice regarding issue of moralities and जोक्तिन्स। यस, अब उन्होंने उनकी मैगजीन्स के थ्रू क्या किया था, आवाज़ उठाई थी, कौन सी इशू के ऊपर, जो मोरालीज और जो जोक्तिस जो कम्युनिटी के लोग हमारी कंट्री में रह रहे थे, तो उन लोगों के लिए। He also took initiative for marriage of Devdasis in Tamil Nadu. Periyar Ramaswamy started a movement for eradication of untouchability. Yes, अब इन्होंने क्या किया था, शिवराम जी ने क्या किया था, इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टेप उठाया था, किसके लिए, जो देवदासी, मतलब जो देवदासी होती है ना, तो उन लोगों की मैरिजेस के लिए, उनकी शादी के लिए। और अब उसके बाद जो तमिलनाडु जो स्टेट था, तो वहाँ पर पेरियर रामास्वामी ने भी क्या किया था, अनटचेबिलिटी के ऊपर से एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। ओके, 1906, Maharshi Vittal Ramji Shinde started the depressed classes mission for the progress of for the Dalits. ये सब 1906 में क्या हुआ था, जो महर्षि विठल राम जी थे, इन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन और एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसका नेम था डिप्रेस क्लासेस मिशन। ओके, और किसके लिए स्टार्ट किया था उन्होंने, जो दलित पीपल थे उनके प्रोग्रेस के लिए ये स्टार्ट किया था। The important part of their work was to make the Dalits self-respectful, well-educated and engaged in work. Okay. अब इनका मेन वर्क क्या था, महर्षि विठल राम जी का, मतलब उन्होंने, अब इनका मेन मोटो क्या था, मतलब वो क्या चाहते थे, दलित जो पीपल थे वो सेल्फ रिस्पेक्टफुल रहे, और प्लस वो वेल एजुकेटेड है, मतलब वो बहुत ही अच्छा एजुकेशन ले, एंड दे वर एंगेज इन देयर वर्क। सो while the second part of their work was to destroy the delusive yes, so क्या हुआ था देखो, while the second part of their work was to destroy the delusive ideas regarding Dalits in the mind of the upper class। obviously देखो, जो पीपल, मतलब वो क्या चाहते थे, जैसे जो अपर क्लास के जो लोग होते थे, ऑब्वियसली दे वर टेकिंग, वो क्या करते थे, वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करते थे, उनको अच्छी अच्छी जॉब मिलती थी,
लेकिन जो ये दलित कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते थे तो उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। यही प्रॉब्लम्स की वजह से उन लोग अपना एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए वो ज़्यादा सपोर्ट और ज़्यादा मतलब ये मिशंस के थ्रू क्या वर्क करते थे, जो दलित पीपल थे उन लोगों को एजुकेशन मिलना चाहिए, है ना? और वो अपनी किसी वर्क में क्या होना चाहिए था, एंगेज होना चाहिए। ओके। और वो मतलब ये तो ये वर्क कर ही रहते हैं कि उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, वो एंगेज होना चाहिए अपने वर्क में। प्लस वो इसके साथ-साथ जो अपर कास्ट के जो लोग थे, उनका जो माइंड था दलित को लेकर, तो वो भी मतलब उनकी जो थिंकिंग थी, वो भी चेंज करते रहते थे। सो फॉर दिस पर्पज़ ही फाउंडेड मराठी स्कूल वर्क। अब इसी की वजह से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मराठी स्कूल स्टार्ट की थी एंड वर्क स्कूल्स इन पार्ट ऑफ परेल, मीन्स उन्होंने कहा कि स्कूल स्टार्ट की थी परेल एंड आफ्टर दैट देवनर इन मुंबई, यहाँ पे उन्होंने स्कूल स्टार्ट की थी। He actively took part for the benefit of Dalit class regarding Satyagraha for entry in Parvati Temple at Pune. शेतकरी परिषद ऑफ दलित, फेडरल इलेक्टोरेट एक्सेट्रा। यस, ऑब्वियसली ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इफर्ट्स के साथ क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे फॉर द बेनिफिट ऑफ दलित क्लास पीपल। मतलब जो दलित क्लास पीपल से जो दलित क्लास से जो लोग बिलोंग करते थे तो उन लोगों के बेनिफिट के लिए उन्होंने बहुत सारे वर्क किए थे। जैसे ही सत्याग्रह फॉर एंट्री इन पार्वती टेम्पल, जैसे पहले जो टेम्पल्स होती थी तो वहाँ पर भी दलित लोगों को एंट्री नहीं दी जाती थी, स्कूल्स में एंट्री नहीं दी जाती थी। इवन जो इलेक्ट्रोड्स होते थे तो वहाँ पे भी उनको इलेक्ट्री नहीं दी जाती थी। तो उन्होंने ये सारी चीज़ों में मतलब अपना कंट्रीब्यूशन किया था कि यहाँ यहाँ जैसे पुणे में जो टेम्पल थी, पार्वती टेम्पल थे, वहाँ पे उनको एंट्री दी गई थी। और फिर शेतकरी परिषद बनाया गया था दलित के लिए। फिर उनके लिए इलेक्टोरेट बनाया गया था। ओके।